Well, viewers, that's what you saw. Fair bit of theatrics where news was concerned. The TMC MPs taking to the bicycle to reach the parliament. But let's just quickly shift focus right now to the farmer protest. It's an issue that has been raked up in parliament multiple times by multiple political parties. The Akali Dal today staged a protest in parliament. But now the farmers, the farm unions that are protesting have said that they will come up with a concerted plan to attack the government this monsoon session. The Delhi police, meanwhile, has said, not allowed. The farm protesters holding fort for over 8 months. And now, with the ongoing monsoon session, the protesters are planning yet another march to Delhi from its borders. Farmers intend on staging planned protest in front of the parliament and hold symbolic Kisan Parliament at Jantar Mantar. Their demand, scrapping of contentious farm laws and a legal guarantee on minimum support price, despite assurances by the government. A 9-member farmer delegation held talks with the Delhi police for permission to hold protests at Jantar Mantar. कोई घेराव नहीं किसी का, हम यहाँ से 200 का जत्था हमारा जाएगा बसों में और जंतर मंतर में जाके पार्लियामेंट के सामने अपना पार्लियामेंट सेशन अपना चलाएगा, अंदर पार्लियामेंट के लोग चलाएंगे। जब वो पार्लियामेंट खत्म होगी शाम को वो वापस आ जाएगा, अगले दिन फिर जत्था जाएगा। Delhi police, however, denied farmers permission to go on with their plan. Police officials cited disaster management protocols amid pandemic fight. They said the gathering of 200 people could pose as super spreader events and spark COVID crisis. High alert was issued by the Delhi police in response to the protest call. Cops held anti-riot drills at key places including Red Fort, which saw violent clashes during Republic Day Farmers' March. किसान नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने हवाला देते हुए कहा कि 26 जनवरी को भी ऐसे ही पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त मांगी गई थी। तमाम रूट तय हुए थे, बावजूद इसके तमाम नियम कानून तोड़े गए और जमकर हिंसा हुई। इसलिए किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की मानसून सत्र के दौरान इजाज़त नहीं दी जा सकती। 7 Delhi metro stations have been asked to be on alert, and if required, they will be shut as a precautionary measure to stop farm protesters. But amid pandemic fight, opposition continues to back the stir and gatherings. कल हम यूनानिमसली वहां एक रेजोल्यूशन लेके आए और डिस्कशन मांगे और उसके बाद गवर्नमेंट पर इसको जोर डाला जाए कि भाई आप फॉल्स प्रेस्टीज पर मत बैठिए। किसानों के साथ कोई, अन्नदाता के साथ कोई फॉल्स प्रेस्टीज नहीं है। जो किसान कहता है वो आप कीजिए और ये वापस बिल लीजिए। The call to support the farmers' agitation, however, raises questions over the protests during a pandemic. As the country braces for a third wave, health experts have cautioned against large gatherings which could lead to a spurt in cases. Even as states call off religious gatherings like the Kamar Yatra, citing the pandemic, is pushing on with the farmers' protest, an example of political hypocrisy. This raises the big question, is the right to protest bigger than the right to life? With Arvind Ocha in Delhi, Bureau Report, India Today. All right, viewers, I want to cut across to Dharmendra Malik. He's the media in charge, the Bharatiya Kisan Union. Malik साहब, एक चीज़ तो बताइए, दिल्ली पुलिस ने आपको बोल दिया है कि आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अब क्या है प्लान? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए, हमने दिल्ली पुलिस से कोई परमिशन तो मांगी नहीं। दिल्ली पुलिस को हमने ये कहा था कि हमारे 200 लोगों का एक जत्था जाएगा, वो भी बस के द्वारा जाएगा और वो जंतर मंतर तक जाएगा। हमारा कोई संसद घेराव या इस तरह की कोई कॉल नहीं है। हम जंतर मंतर पर किसान संसद लगाना चाहते हैं, हमको उसकी स्वीकृति दी जाए। अब दिल्ली पुलिस ने हमें तो अभी कुछ बताया नहीं है, कल उनके साथ दोबारा मीटिंग है, लेकिन हमारा ये है कि ये हमारा कार्यक्रम है।
मलिक साहब, ये किसान संसद में कितने लोग होंगे? आप क्या चाहते हैं संसद लगा के? संसद तो सुन नहीं रहा है आपकी बात, जो गवर्नमेंट है। हाँ, तो इसीलिए हम देश के ध्यान आकर्षण के लिए अपनी संसद लगाना चाहते हैं और हमारे 40 ऑर्गेनाइजेशन उसमें भाग लेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन का के 5 व्यक्ति होंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन की उन 5 आदमियों की तो जिम्मेदारी कोरोना होगी। काल में आप लोग सबके 200 आइडेंटिटी लोग कार्ड जंतर होंगे जो मंतर में SKM बैठेंगे। द्वारा इश्यू किए जाए। अब हम तो मोर्चे पे भी बैठे हैं जी, कोरोना काल हो चाहे कोई भी काल हो, हम बॉर्डर पे भी तो बैठे ही हैं। चलिए मलिक साहब, बस एक चीज बताइए जाने से पहले, अगर पुलिस कहती है कि आप नहीं आ सकते जंतर मंतर, तो क्या प्रतिक्रिया है? फिर भी आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, देखिए हम तो जाएंगे, पुलिस को जो कार्रवाई करनी है वो करे। और ये कार्यक्रम कब का है? कार्यक्रम 22 तारीख से हमारा शुरू होगा और जब तक संसद चलेगी प्रत्येक दिन एक जत्था जाएगा। चलिए, 22 तारीख से आपका ये कार्यक्रम शुरू होगा और आप जंतर मंतर की तरफ, जो 40 ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से 5 लोग हर ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, हम नहीं बढ़ेंगे भी नहीं, हम बाई बस जाना चाहते हैं। हम पैदल या ट्रैक्टर या उस तरह का कंसल्टेशन कुछ नहीं चाहते। और अगर आपकी बस रोक ली गई तो? जंतर मंतर तक जाने दिया जाए, हमारे 200 लोग, तो वो पुलिस का काम है जी, फिर पुलिस को जो कार्रवाई करनी है वो करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमसे जुड़ने के लिए। हम आप फॉलो करते रहेंगे, आपके पास आएंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है आगे बढ़ने पे।